मोअज़्ज़ज़ अरकीन, जनाब स्पीकर। अस्सलाम वालेकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल-जूअ वनक़्सिम मिनल अम्वालि वल-अन्फुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इरशाद रब्बानी है, और जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा हैं लेकिन तुम्हें इसका शऊर नहीं। और हम ज़रूर तुम्हें कुछ डर और भूख से और कुछ मालों और जानों और फलों की कमी से आजमाएंगे, और सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दो। वो लोग कि जब उन पर कोई मुसीबत आती है तो कहते हैं हम अल्लाह ही के हैं और हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं। ये वो लोग हैं जिन पर उनके रब की तरफ से दरूद हैं और रहमत हैं, और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अन अबी ज़र्र रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह अय्युल अअमालि अफ़ज़ल क़ाल अल ईमानु बिल्लाह वल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह अख़रजहुल बुख़ारी फ़ी किताबिल ईमान। अन अबी ज़र्र रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आपने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह कौन से आमाल अफजल हैं? आपने फरमाया अल्लाह पर ईमान लाना और जिहाद फी सबिलिल्लाह करना। आईनाए जमाले खुदा सैयदुल वरा, कोई न तुझ सा तेरे सिवा, सैयदुल वरा। आका मेरे मदीनाए सानी की खैर हो, मट्टी हो
इसकी खाके शिफा सैयदुल वरा परचम मेरे वतन का कभी सरनिगूं ना हो लहराए रिफातों पे सदा सैयदुल वरा कोई ना तुझ सा तेरे सिवा सैयदुल वरा Auzubillahi Minash-Shaytanir-Rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Leave applications and then we'll continue with border situation के ऊपर जो हमारी बहस जारी है. Mr. Ali Afzal Sahi has requested for the grant of leave. Leave granted, granted. Mr. Muhammad Mubin Arif has requested for the grant of leave. Leave granted, granted. Mr. Adil Khan Bazai has requested for the grant of leave granted, granted. Sayyid Ali Musa Gilani has requested for the grant of leave granted, granted. Mr. Faisal Amin Khan has requested for the grant of leave granted, granted. Mr. Usman Ahmad Mela has requested for the grant of leave granted, granted. Khwaja Shiraz Mahmood has requested for the grant of leave granted, granted. Mr. Muhammad Ahmad Chatta has requested for the grant of leave granted, granted. Sayyid Abrar Ali Shah has requested for the grant of leave granted, granted. Mr. Muhammad Afzal has requested for the grant of leave granted, granted. Ms. Shugufta Jumani has requested for the grant of leave granted, granted. Mr. Muhammad Muin Amir Pirzada has requested for the grant of leave granted, granted. Sayyid Wasim Hussain has requested for the grant of leave granted, granted. Mr. Zulfikar Ali Behan has requested for the grant of leave granted, granted. Mr. Ramesh Lal has requested for the grant of leave granted, granted. Malik Shakir Bashir Awan has requested for the grant of leave granted, granted. Mr. Ambar Majid has requested for the grant of leave granted, granted. Malik Muhammad Iqbal has requested for the grant of leave granted, granted. Makhdoom Tahir Rashiduddin has requested for the grant of leave granted, granted. Ms. Naz Baloch has requested for the grant of leave granted, granted. Shazia Mari has requested for the grant of leave granted, granted. Mr. Khalid Ahmad Khan Lund has requested for the grant of leave granted, granted. Makhdoom Jamilul Zaman has requested for the grant of leave granted, granted. Ms. Nosheen Iftikhar has requested for the grant of leave granted, granted. Mr. Saad Wasim has requested for the grant of leave granted, granted. Ms. Shaza Mansab Ali Khan Kharal, Minister
of State for Climate Change has informed that she will not be able to attend the session on 5th to 9th May 2025. जी, आमिर डोगर साहब, आपको कोर्ट में जाना है, वरना पहले हमने इकबाल अफरीदी साहब को देना था, मगर आप कर लें, उसके बाद फिर इकबाल अफरीदी साहब। जी, नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। हम पिछले 3-4 दिनों से इस ऐवान से एक कौमी यकजहती का पैगाम दे रहे हैं इस मौका पर जब गुजरात के कसाई ने, जंगी जुनून में मुब्तला मोदी ने एक रात की स्याही में पाकिस्तान पर हमला किया। पिछले 2 दिन और पिछली एक रात जो पाकिस्तान की आवाम इकट्ठे होकर जाग कर गुजार रही है और हर महाज पर मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है, ऐसे मौके पर जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो आप जानते हैं कि मेरे कायद इमरान खान का पैगाम आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एक वर्कर इस मौके पर शाना बशाना खड़ा है मुल्क की सालमियत और बका की खातिर अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ, अपने उन जवानों के साथ जो जवान आज बॉर्डर पर हमारी हिफाजत पर मामूर हैं। लेकिन जनाब स्पीकर, जनाब डिप्टी स्पीकर, जब कौमी यकजहती की बात हो तो 2 दिन पहले आपके इल्म में है कि अडियाला जेल के बाहर मुझ पर और मेरे साथियों पर जो बेईमाना तशद्दुद किया गया, कल हमने ये मुद्दा रखा स्पीकर साहब के चैम्बर में क्योंकि हम चाहते थे कि कल का दिन पाकिस्तान का दिन है और हम एक पैगाम यहाँ से दें प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर के बाद कि हम सब इकट्ठे हैं, हम सब मुत्तहद हैं और हम मुत्तहद हैं और इकट्ठे हैं, अपनी अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस तरह हमारी स्पेशली एयरफोर्स ने दंदान शिकन जवाब दिया है, इसी तरह जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, कल जब हम कौमी यकजहती की बात करते हैं, कल जब हम कौमी यकजहती की बात करते हैं तो कल आपने देखा कि एक और स्याह दिन था अदालती तारीख का। कल सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट से ट्रायल हो सकता है, उस पर आईनी बेंच ने फैसला दिया। शेम। और ये कल से मैं इतना पिछले 2 दिनों से, जाहिर है दिल बहुत गम से चूर है, गमगीन है, लेकिन कल जो ये वाकया हुआ, ये फैसला आया, ऐसे मौके पर जब ये ऐवान, ये पार्लिमान इकट्ठे होकर एक मैसेज दे रहा है कि तमाम पार्लिमानी पार्टियां, पूरी कौम अक्रॉस दी बोर्ड इकट्ठी है, मैं समझता हूं और ये एजाज भी पाकिस्तान को अब हासिल हो गया कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है। वाहिद मुल्क है दुनिया का। आज मैं रिकॉर्ड पे ये बात ला रहा हूं, किसी दुनिया के मुल्क में ऐसा नहीं है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में भी युगंडा, जिसने हमारा ये आर्मी एक्ट जो 1911 का था, फिर 1967 में ये फौजी हुकूमत में ये एक्ट बना, युगंडा ने भी 1997 में इसको ख़त्म कर दिया था। तो मैं इसकी मजम्मत करता हूं। हमने आइन और कानून के लिए, इस मुल्क में इंसानी हकूक़ की बका के लिए और राय हक के लिए हम जंग लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। दिल नाउमीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। दिल नाउमीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। मुझे उम्मीद है कि मेरे सामने पीपल्स पार्टी के काबरीन खुर्शीद शाह साहब, नवीद कमर साहब, राजा परवेज अशरफ साहब, पटेल साहब
और बाकी यहाँ पार्लिमानी जो लीडरान बैठे हैं, बिलखसूस पीपल्स पार्टी, जिन्होंने सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के खिलाफ हमारी लीडर शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने एक जद्दोजहद की थी आइन और कानून के लिए, जमहूरियत के लिए। तो उम्मीद है कि ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के नज़रिए को दफन होने से बचाएंगे और इस मामले में कम से कम और कुछ ना करें। कल जो उस बेंच ने एक फैसला दिया है कि अपील के लिए पार्लिमान जो है वो लेजिस्लेशन करे, तो सिविलियन की अपील के बारे में ये आगे बढ़ेंगे और उससे मोहतरमा की रूह को सुकून पहुंचेगा जनाब, और भुट्टो साहब के फलसफे को भी सुकून पहुंचेगा। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आज फिर हम दोबारा इस अज़्म का इजहार करते हैं कि हम सब एक हैं, हम मुत्तहिद हैं। लेकिन यहाँ आपने देखा कि जो हमारे जख्म थे वो बड़े थोड़े थे। हम खराज तहसीन पेश करते हैं उन 50 शोहदा को, उन जख्मियों को, और इंशाल्लाह हम उनके खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे, एक एक कतरे का हम हिसाब लेंगे। वो कहते हैं शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी हम हिंदुस्तान की हर जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। मैं यहाँ कल जो फैसला आया उसमें 2 जजेस साहबान जिन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा, और तारीख में हमेशा उनका नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब और जस्टिस नईम अफगान साहब, उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये इख्तलाफी नोट ही हमेशा तारीख के अंदर अमर हो जाते हैं, और इन दोनों जज साहबान का ताल्लुक एक छोटे सूबे से है, बलोचिस्तान से है, जहां एहसास महरूमियां हैं। और अफसोस जिस सूबे से मेरा ताल्लुक है वहां के लोग हमेशा हाशिया बरदार ठहरे, हमेशा महकूम ठहरे। अफसोस, मुझे बहुत अफसोस के साथ ही कहना पड़ रहा है। आखिर में जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आज अल-कादर ट्रस्ट का भी मुकदमा है हाई कोर्ट में, और वो मुकदमा आप जानते हैं जो मेरे लीडर इमरान खान साहब पर और मोहतरमा बुशरा बीबी साहबा पर झूठ पर मबनी बनाया गया, जिसमें 1 रुपए का नुकसान ना सरकार को हुआ और ना 1 रुपया इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा की जेब में गया। ये मुकदमात जो इमरान खान साहब पर बनाए गए हैं वो फेस कर रहे हैं, वो हक और सच की जंग लड़ रहे हैं, वो इस कौम की जंग लड़ रहे हैं। आज आप सिविलियन में ट्रायल करवा लें, आप जो मर्जी कर लें, इमरान खान तो आज एक नजरिए का नाम है, और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को दबाया जाए, उनको नीचे दिखाया जाए। इमरान खान तो जेल में बैठकर भी डिप्टी स्पीकर साहब अमर हो गया है, लेकिन अफसोस कि हमारी ये जो पार्लिमान है, ये पार्लियामेंट जिसने 26वीं तरमीम बिलखसूस ताकतवर लोगों की आमराना पॉलिसियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बतौर रबड़ स्टैंप ये पार्लियामान इस्तेमाल हो रही है, तो हम पीछे से पीछे जा रहे हैं, और इसकी हम जितनी भी मजम्मत करें कम हो। मुझे उम्मीद है कि जब ताकतवर लोगों का ये सियासी एजेंडा मुकम्मल होगा तो एक वक्त आएगा इस कुर्सी पे इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म बैठेगा, और हम 27वीं तरमीम के जरिए इन तमाम आमराना कानून, काले कानून जो 26वें तरमीम में बनाए गए, वो पीका एक्ट हो, इसको रिवर्स करेंगे, और इंशाल्लाह खल्क़े खुदा राज करेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। शुक्रिया। इकबाल अफरीदी साहब। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। सबसे पहले तो मैं रात की तारीकी में बुज़दिल दुश्मन की कार्रवाई की पुरजोर मज़म्मत करता हूँ, और हम कबाइल हैं। कबाइल मुल्क के दिफा के लिए पहले भी लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। आज़ादी के बाद सरहदों की हिफाजत, वहाँ पे न तो सिक्योरिटी फोर्सेस थी
न ही पुलिस थी, इन्हीं कबाइल ने उन सरहदों की हिफाजत की। और उसके बाद कश्मीर की आज़ादी में उन्होंने कलीदी किरदार अदा किया और अब भी हमारे आबा व अजदाद के कब्र कश्मीर में मौजूद है। लिहाजा इस धरती को हम अपनी मां समझते हैं और इसकी हिफाजत हम अपना फर्ज समझते हैं। लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब, कौम भी कुछ चाहती है, कबाइल की भी कुछ डिमांड है, और चूंकि बहुत मुअज़्ज़ज़ अरकान कौमी असम्बली और जिम्मेदार बेटे हैं, आज ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम कबाइल वाज़े करें कि इस मुल्क में हम भी हिस्सेदार हैं, हम भी इस मुल्क की शहरी है। और सबसे पहली बात कि कौम जो चाहती है वो जवाबी कार्रवाई चाहती है, और दोनों ममालिक के फोर्सेस जब हम देखते हैं तो वहां से जो मिसाइल आते हैं तो यहां पे हिट होते हैं, और यहां से जब जाते हैं वहां पे हिट होते हैं। हमें तो बड़ा अफसोस हुआ है कि इनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है सिविलियन को बचाने के लिए। कौम जवाबी कार्रवाई चाहती है। और साथ साथ जनाब स्पीकर साहब, कबायली इलाकों में आज भी ऑपरेशन जारी है, और तिरा वो इलाका है जहां पे गुज़श्ता 73-75 साल इस मुल्क के दिफा के लिए वो लड़े हैं। वहां पे घरों को खाली करने का हुक्म दिया गया है। लिहाजा मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान और आपसे इल्तिजा करता हूं कि वो भी पाकिस्तानी है, उसकी भी बच्चे और वहां पे कारोबारे हैं, और वो अभी स्टील हुए हैं वहां पे वापस जाके। लिहाजा वहां पे ऑपरेशन बंद और उन लोगों को जीने का हक दिया जाए। जनाब स्पीकर साहब, कौमी इत्तेहाद के लिए बहुत सारी बातें जरूरी है, और मैं समझता हूं कि आज हुकूमत और आर्मी चीफ के भी इम्तिहान है, जबकि हम कल साबित कर चुके हैं तहरीक इंसाफ कि यहां पे शहबाज शरीफ की तकरीर और कौमी इत्तेहाद के लिए हम यहां पर सुकून और पुरअमन बैठे रहे। लेकिन हुकूमत और आर्मी चीफ का इम्तिहान है कि वो किस तरह नापरस्ती से और मैं इमरान खान से मुलाकात की, स्पेशली आर्मी चीफ से, और आप हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि उनके साथ बैठकर इस नाजुक सूरत हाल को समझते हुए कौमी इत्तेहाद की फिजा पैदा करें। जनाब स्पीकर साहब, साथ साथ कल जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच से, हमें तो ऐसा लग रहा है कि जो रात को हमला हुआ है बुज़दिल दुश्मन की तरफ से और कौम की इत्तेहाद की एक फिजा बनी थी, उसको भी मुंतशिर किया गया कौम को, और ऐसे वक्त में वो फैसला किया गया जिससे कौम ने रंज और गम का इज़हार किया। जिससे ये क्या साबित करना चाहते हैं? क्या मिलिट्री कोर्ट के फैसले से इस मुल्क में अमन आ जाएगा? क्या तहरीक इंसाफ इस फैसले को मानेगी? नहीं जनाब स्पीकर साहब, हम जिस तरह इनके दायरे में अपनी तहरीक चलाते रहे हैं, इससे ज्यादा मुज़म्मत करेंगे, इससे ज्यादा एहतिजाज करेंगे इस फैसले से। लिहाजा मैं अपील करता हूं कि एक तो हालात इस तरह है, दूसरी तरफ अनापरस्ती है, और फिर कौम की इत्तेहाद की बातें भी हो रही है। एक बात कबाइल की पार्ट पे मैं कहता हूं कि अगर कबाइल के साथ
ये जुल्म होता रहा, कबाइल के घरों पे शिलिंग होती रही, कबाइल के घर मसमार होते रहे, कबाइल को शहीद होते रहे, तो हम सड़कों पे आ जाएंगे और हम अपना एहतिजाज वहां से लेकर पे यहां असेंबली के सामने पर करेंगे, जिसकी हुकूमत जिम्मेदार होगी, इदारे जिम्मेदार होंगे। लिहाजा हमें सुकून से रहने दिया जाए। हमारे इलाके में जो देर पामन था वो आप लोगों ने खराब किया। इमरान खान की 3.5 साल दौर में वहां पे न तो बम ब्लास्ट हुआ, न घर पे ड्रोन अटैक हुआ, न किसी तरफ से शिलिंग हुई, न घर मसमारी हुई, न वहां पे ऑपरेशन हुआ, न किसी को गिरफ्तार किया गया। लेकिन आप लोगों की हुकूमत में आने के बाद ये वो कौन सा परिश्ते या कौन सा ऐसे आफात आ गए कि वहां पे आप लोगों ने ऐसा माहौल बनाया? किधर से आ गए वो मिलिटेंट? जो पेंशन हुई, अरबों रुपए लगे, वहां पे किधर से वो लोग आए? और आप लोग अगर 50 लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते तो फिर हम किस बहुत बहुत मेहरबानी। शुक्रिया। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं नवीद कमर साहब? मैं इधर दे दूं, हमारे ऑनरेबल कोलीग हैं जिनके हलके में ये कल सुबह जो अटैक हुआ है 26 के करीब लोग शहीद हुए हैं। आई थिंक अब उनको दे दें, उसके बाद फिर राजा अशरफ परवेज साहब। जी मोहम्मद इकबाल साहब। ये माइक खोलें मोहम्मद इकबाल साहब का। एक मिनट आपका माइक नहीं ऑन है, आप अपनी सीट पे ओके, अब बोलें। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने हमारे भावलपुर में जो हमला हुआ है इंडिया ने किया है, हमारी सरजमीन पर निशाना बनाया है। मस्जिद सुभान अल मरूम मदरसा मौलाना मसूद अख्तर पर हमला किया। ये हमला न सिर्फ पाकिस्तान की खुद मुख्तियारी पर हमला है बल्कि जनूबी पंजाब के बाशियों के दिलों पर भी एक वार है, जिन्होंने क़याम पाकिस्तान के वक्त सबसे पहले मादरे वतन से वफादारी का ऐलान किया था। जनाब स्पीकर, दुश्मन ने शायद ये समझा कि पाकिस्तान अंदरूनी मसाइल में उलझा हुआ है, लेकिन वो भूल गया है कि जब वतन पर आँच आती है तो पूरी कौम एक सौ पर खड़ी हो जाती है। पाक फौज ने फौरी रद्द अमल के साथ न सिर्फ दुश्मन के नापाक अज़ैम को खाक में मिला दिया, बल्कि अपनी पेशा वराना महारत से एक बार फिर दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान की सरहदें फौलादी हाथों में महफूज हैं। जनाब स्पीकर, पाक फौजा की शानों ने 5 भारतीय जहाज मार गिराए और पाक आर्मी ने कंट्रोल लाइन पर दुश्मन के कई मोर्चों को खामोश कर दिया। ये सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं, ये पैगाम है कि पाकिस्तान अमन चाहता है लेकिन इज्जत खुद मुख्तियारी पर कभी समझौता नहीं करेगा। मैं यहाँ खड़े होकर भावलपुर के और पाकिस्तान के शोधा को सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना देकर कौम की आन बान और शान की हिफाजत की। इनका खून हमारे परचम का रंग है और इनकी कुर्बानी हमारे आने वाली नस्लों की आज़ादी की जमानत है। शोधा के अहल खाना के साथ शाना बशाना रियासत खड़ी है और इनकी तकरीम हमारी जिम्मेदारी है। हम भारत को वादा कर देना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, मगर इसे हमारी कमजोरी न समझा जाए। हम हर महाद पर जंग के लिए तैयार हैं, वो चाहे वो अस्करी हो, सफारती हो, नफसियाती हो। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है, मगर अपनी हदूद में
अपनी इज्जत और अपनी शादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी हद तक भी जा सकती है। जनाब स्पीकर, कल रिंग स्टेडियम में भावलपुर के जो शहीद लोग थे उनका जनाजा था और वो लोगों के जज्बात आज भी वही हैं पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए। हम हर वक्त तैयार हैं और तैयार रहेंगे और पाकिस्तान की बका के लिए काम करते रहेंगे। अपना खून का आखिरी कतरा भी पाकिस्तान की बका के लिए हमारा हाजिर है। हम वो लोग हैं जिन्होंने क़याम पाकिस्तान के वक्त इलाक़ किया था, पाकिस्तान से वफादारी से का वादा किया था। आज भी हम वही हैं, इनसे वादा करते हैं कि हम अपनी पूरी ईमानदारी के साथ पाकिस्तान की बका के लिए काम करते रहेंगे। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। शुक्रिया। ऑनरेबल राजा परवेज अशरफ साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो मैं आपकी वसातत से सारे हाउस को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं कि जिस मुहब्बुल वतनी के साथ, जिस जिम्मेदारी के साथ इन्होंने जो पहलगाम अटैक के बाद हिंदुस्तान की तरफ से शरपसंदी हुई और उन्होंने हमारी सरजमीन पे मिसाइल फायर किए और मासूम और बेगुनाह सिविलियन को उसका निशाना बनाया, उस पर जिस जिम्मेदारी के साथ इस हाउस ने, जिस जुर्रत के साथ तमाम मेंबरान ने, खैर उनका तल्लुक अपोजिशन से था या हुकूमत था, उन्होंने कौमी यकजहती का जो मुजाहरा किया है, उस पर पूरी कौम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। जनाब स्पीकर, हिंदुस्तान अजली दुश्मन है पाकिस्तान का, एक ऐसा हमसाया जिसने आज तक पाकिस्तान को ज़हनी तौर पर कबूल नहीं किया। उसके हर वक्त, हर दौर में यह कोशिश रही है कि वो जितना पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सके पहुंचाए। बदकिस्मती से आज की जो हुकूमत है, जिसे मोदी गवर्नमेंट कहा जाता है, वो एक इंतहा पसंद तंजीम आरएसएस का पॉलिटिकल विंग है। आरएसएस जो है वो मुसलमानों का, जो हिंदुस्तान में मुसलमान हैं, उन पर जिस कदर उन्होंने जुल्म और सितम ढाए वो सबके सामने है, और बाकी अकलियतों पर भी, सिखों के खिलाफ उनकी नफरत जो है वो भी अपने इंतहा पे है। तो बदकिस्मती से पाकिस्तान को इस वक्त एक ऐसे दुश्मन का सामना है जिस पे हुकूमत उन लोगों की है जो न सिर्फ पाकिस्तान से नफरत करते हैं बल्कि वो इंसानियत के दुश्मन, वो शर पसंद हैं, इंतहा पसंद हैं, और उनकी सियासत का दारोमदार नफरत पर है। नफरत को बुनियाद बनाकर वो सियासत करते हैं, और जब भी उनको नफरत को तेज करना होता है, वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई मन गढ़ंत कहानी घड़ के उस पाकिस्तान पर जो है इल्ज़ाम देने की कोशिश करते हैं ताकि पाकिस्तान को बदनाम कर सके। जनाब स्पीकर, ये जो 22 अप्रैल को पहलगाम का वाक़या हुआ और जिस तरीके से हिंदुस्तान ने उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया, कोई अहमक तरीन शख्स भी ये समझ सकता है कि वो एक मन घड़त कहानी थी और उसका पर्दा चाक हो चुका है, और लोगों को नहीं, पूरी दुनिया को इसका इल्म हो चुका है कि वो सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए था। उसके बाद बिला इश्ताल रात के तारीकी में, जैसे सब दोस्तों ने कहा, कि चोरों की तरह उसने पाकिस्तान पर हमला किया। अल्हम्दुलिल्लाह अफवाज पाकिस्तान
पूरी कौम हम वक्त तैयार थे और उन्होंने जिस बहादुरी के साथ, जिस जुर्रत के साथ, जिस दानिशमंदी के साथ और जिस मैं समझता हूं कि इंसानी कदरों को सामने रखते हुए उन्होंने दुश्मन का न सिर्फ वार पसपा किया बल्कि उनको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। और जिस हिंदुस्तान को अपने राफेल जहाज़ों पर बड़ा घमंड था और वो कहा करता था कि जब राफेल आएंगे तो उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा, उनको ज़मीन बोस किया। तो उस पर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एयरफोर्स को जितनी भी सताइश की जाए, जितनी भी मुबारकबाद की जाए, जितनी भी उनको जो है शाबाश दी जाए, इस कौम की तरफ से वो कम है कि उन्होंने पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। और देखिए इसी तरह वो हमारे सिविलियन पर अटैक करता है, हमारे बच्चों को, बेगुनाह बच्चों को उसने शहीद किया, हमारी इबादत गाहों पर उसने हमला किया और हमारी बहादुर अफवाज ने सिर्फ फौजी ठिकानों को तबाह की। कोई एक सिविलियन कैजुअलिटी जो है वो हिंदुस्तान में नहीं की, क्योंकि वो एक ऐसी खुदा के फजल से एक बेहतरीन बहादुर और इंटरनेशनल कन्वेंशंस पे यकीन रखने वाली फौज है और उसने अपना फर्ज नहायत ही जिम्मेदारी के साथ अदा किया। जनाब स्पीकर, कौमों पर जब ऐसा वक्त आता है, इससे पहले भी पाकिस्तान ने कई दफा ये बात साबित की है, तो सबसे बड़ी कुव्वत जो फौज को मुहैया की जा सकती है वो हमारा आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक, आपस में की मोहब्बत है। असल में वो जो हम आपस में मोहब्बत और वो यगानगत करते हैं वो पाकिस्तान से मोहब्बत और यगानगत है। हमें सियासत में इख्तलाफात होते रहते हैं, शायद आइंदा भी होंगे, अब भी हैं, लेकिन जब कौम की बात हो, जब पाकिस्तान की बात हो, जब मादरे वतन की बात हो, तो हर चीज को पसे पुश डालकर फिर बस एक कौम जो है वो सीसा पलाई हुई दीवार बन जाती है और ये पाकिस्तानी कौम का खास है। मैं मोदी को ये बात बताना चाहता हूं कि तुमने बड़े अरसे से इसकी तैयारी की थी। सबसे पहले तुमने यहां पर जो था वो दहशत गर्दी को हर किस्म की सपोर्ट थी। जितनी पाकिस्तान में दहशत गर्दी होती है, जो धमाका होता है, जो कत्लो गारत होती है, उसके पीछे मोदी, उसके पीछे हिंदुस्तान। और ये अभी कोई ढकी छुपी बात नहीं है और हमें भी अलालान ये बात करनी चाहिए। इसको लफ्जों में छुपाने की जरूरत नहीं है, हमें बताना पड़ेगा दुनिया को कि मोदी जो है वो इंसानियत का दुश्मन है। मोदी जो है वो सबसे बड़ा दहशतगर्द है, वो आरएसएस का कारकुन, उसका लीडर। तो ये वो हालात हैं जिससे पाकिस्तान को सामना है। इन हालात का सामना करने के लिए, जैसे मैंने पहले गुजारिश की, जिस तरह हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने भी कल कहा कि हमें अपने सारे इख्तलाफात इस वक्त खत्म कर देने चाहिए। एक ही पैगाम अपने दुश्मन को जाना चाहिए कि पूरी पाकिस्तानी कौम एक। अब दूसरी तरफ देखिए, एक तो ये कि भाई वहां पहलगाम का वाकया हुआ है, ये पाकिस्तान ने कराया, और दूसरी तरफ जब यहां पर हमारी ट्रेन का वाकया होता है, जनाबे स्पीकर, ट्रेन है जो जाफर एक्सप्रेस, इसमें कोई शवा नहीं कि वो उसके पीछे हिंदुस्तान था। मेरे हल्के से मैंने 4 जनाजे पढ़े जो ट्रेन के मुसाफिर थे, जो हमारे बहादुर फौजी थे, जो निहत्ते थे, जो छुट्टियों पे घर आ रहे थे, जिसमें नायक मलिक सरफराज शहीद जो सुखों से तल्लक था, सिपाही मलिक साकिब लतीफ़ शहीद जिसका डरियाल से तल्लक था, सिपाही खुरम सलीम शहीद पंजगरां खुर्द से तल्लक था, उससे पहले मेजर हमजा असरार शहीद का जनाजा। तो जनाब स्पीकर, हम तो अपने बच्चों के जनाजे उठाते हैं और साथ फख्र भी करते हैं कि वतन की खातिर उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, उन्होंने वतन की खातिर अपना खून दिया। आप आए हमारे कब्रिस्तानों को देखें, कोई ऐसा शायद कब्रिस्तान नहीं है जिसमें पाकिस्तान का झंडा नहीं लहरा रहा किसी शहीद की कब्र पर। और बहादुरी और हिम्मत के ये मिसाल मैं आपके दूं
कि एक दफ़ा मैं एक जनाजा पढ़ने के लिए गया जो एक शहीद का था, तो वो एक बुजुर्ग थे, तो मुझे कहने लगे कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सोच रहा था कि हमारे कब्रिस्तान में कोई शहीद दफन नहीं है, तो आज अल्लाह का करम हुआ कि एक शहीद आ गया है जो इस कब्रिस्तान में दफन होगा। कल जब मैं भी मरूंगा तो मैं इसी कब्रिस्तान में दफन हूंगा और मैं शहीद वाले कब्रिस्तान में दफन हूँ। ये जिस कौम का जज्बा है उसको मोदी क्या डरा सकता है, उसको हिंदुस्तान से क्या डर लग सकता है? हिंदुस्तान को ये बात समझ नहीं आती कि वो ये कौम है जिसका जज्बा है और उन्होंने अपने बच्चों को पाल पोस कर फौज में भेजा है और एक जज्बे के साथ कि या तुम गाजी बनोगे या शहीद बनोगे। इस जज्बे को जनाब स्पीकर दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। और आज इस पार्लियामान से मोदी को यह पैगाम मिल चुका है कि पूरी कौम मुत्तहिद है और अगर उसने पाकिस्तान के खिलाफ मैली आंख से देखने की कोशिश की तो मैं आपको दावे से कहता हूं कि ये 24 करोड़ अवाम, जिसमें बूढ़े भी हैं, जिसमें बच्चे भी हैं, जिसमें औरतें भी हैं, जिसमें मर्द भी हैं, जवान भी हैं, खुदा की कसम ये मेरा ईमान है कि वो आए तो सही पाकिस्तान की तरफ, कदम तो रखे हमारी सरजमीन, पाक सरजमीन पर। आप उसके अगर नापाक कदम आए तो ये लोग उसकी बोटियां नोच डालेंगे और उनको समझ नहीं लगेगी कि वापस भागना कैसे। अब ये कौम तैयार हो चुकी, इसका जज्बा जो है वो आसमान पर पहुंचा हुआ। हमारी बहादुर अफवाज जो हैं उनके सीने जो हैं वो कलमे से रोशन, वो हमारे बच्चे, वो हमारे बेटे, हम उनको जानते, हमने खुद उनको पाला पोसा है। और आज का जो आपका सिपा सालार है उसके सीने में कुरान। इसलिए किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए किसी किस्म की भी कि वो पाकिस्तान को कोई जेर कर सकता है, पाकिस्तान को कोई तोड़ सकता है। मोदी कहता है कि इंडस ट्रीटी को मैं खत्म कर दूंगा। तुम करो इंडस ट्रीटी को खत्म, तुम रोको पाकिस्तान का पानी, फिर देखो क्या होता है। सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। अगर तुम ट्रीटी को खत्म करते हो तो फिर हम भी ट्रीटी को खत्म करेंगे, फिर रावी सुतलज ब्यास जो है वो भी हमारा है। सिंध को तुम रोक सकते हो। पाकिस्तान के 24 करोड़ लोग अपने पानी की हिफाजत करते हैं और ये वो घटिया बात है जनाब स्पीकर। इससे पहले 65 में भी लड़ाई हुई, 71 में भी जंग हुई, लेकिन किसी ने इंडस ट्रीटी की बात नहीं की। ये फर्स्ट टाइम, ये पहली दफा है। इसलिए कि ये मोदी है, इसलिए कि वो इंसानियत का दुश्मन है, इसलिए कि वो एक बुज़दिल इंसान है जो इस किस्म की हरकत करता है, इस किस्म की सोच रखता है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के 24 करोड़ लोग जो कि चट्टान की मानद अपनी अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़े हैं, ये मोदी को इबरतनाक शिकस्त देंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया। शाहिदा अख्तर अली साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर, एक इंतहाई अहम मौजू पे आपने बोलने का मौका दिया है। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और हमेशा से अपने खित्ते में अमन का ख्वाहां रहा है, लेकिन बदकिस्मती से हमारा एक पड़ोसी मुल्क जो कि पाकिस्तान में सिर्फ आज से नहीं बल्कि रोज़े अव्वल से दहशतगर्दी करता आ रहा है और पाकिस्तान में मौजूद हमारे मासूम शहरियों को, हमारे मासूम बेगुनाह शहरियों को दहशतगर्दी का निशाना बना के, और सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि न सिर्फ निशाना बनाया बल्कि दहशतगर्दी का मोरद इल्ज़ाम भी पाकिस्तान को ठहराता है। जनाब स्पीकर, ये जो पहलगाम का वाक़या हुआ और परसों रात की तारीकी में जो बुज़दिलाना फेल हिंदुस्तान की जानिब से हुआ, इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। जनाब स्पीकर, हमारे अफवाज पाकिस्तान ने जिस तरह मुस्तैद होके और जज्बा ईमानी के तहत, जो कि एक मोमिन का जज्बा होता है, ये आश्कारा किया
कि चाहे दिफाई कुव्वत पड़ोसी ममालिक के पास जितनी भी हो, जितनी भी टेक्नोलॉजी हो, लेकिन जो मोमिन का जज्बा है उसके सामने वो टेक्नोलॉजी ढेर हो जाती है। और यही हमारे अफवाज ने कर दिखाया, हमारे शाहीनों ने कर दिखाया कि उनके अफवाज को जिस तरह मुंह की खानी पड़ी और अपने ही सरहद के अंदर रहते हुए अपनी सरहद की हिफाजत करते हुए उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। जनाब स्पीकर, हमारे अफवाज के गैर मुतज़लज़ल अज़म लिए हुए और जिस तरह वो अपने अज़म को और जिस तरह वो अपनी ओत की खातिर अपनी सरहदात की हिफाजत करते हैं, जिनका स्लोगन है कि यू स्लीप टाइटली वी आर अवेक, और कायद ने भी कहा कि देयर इज सेकंड टू नन, और उन्होंने साबित कर दिया। और जनाब स्पीकर, अगर आज हम मुत्तहिद हैं और इस ईवान से एक आवाज जाती है तो ये कौम की सलामती के लिए है, सॉवरेनिटी के लिए है। हमें इस मौके से फायदा उठाना चाहिए। आज हम मुल्क की सालमियत के लिए यकजा हैं। हम यकनुकाती एजेंडे के तहत अपने जितने भी पाकिस्तान के हालात हैं, चाहे वो माशी तौर पे है, चाहे दहशतगर्दी के हवाले से है, चाहे और कोई ऐसी पॉलिसी है, तो हम यकजा हो के हम मुल्क की सालमियत को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसी पॉलिसी बनाएं जो कि एक सस्टेनेबल पॉलिसी हो। जनाब स्पीकर, हमने तारीख में देखा कि कभी यहाँ पे कुछ ऐसे हुकूमतें आई, कुछ ऐसे आमरीत का दौर आया कि जिन्होंने इस्लामाइजेशन का नारा लगाया, कभी डी इस्लामाइजेशन का नारा लगाया, कभी रेडिकलाइजेशन का नारा लगाया और कभी डी रेडिकलाइजेशन का नारा लगाया, कभी प्राइवेटाइजेशन और कभी नेशनलाइजेशन। हम कब तक इन पॉलिसियों को लेके जाएंगे जो कि अनसर्टन है? आज वक्त है कि अगर हुकूमत ये वक्त ये जिम्मेदारी लेती है और आगे बढ़ती है और अपोजिशन का हाथ थामती है कि मुल्क की सालमियत के खातिर आगे बढ़े, तो जनाब स्पीकर, आपके तवस्सुत से मेरी भी ये इस्तदा है अपने JUI के प्लेटफॉर्म से कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द कॉमनैलिटीज। यही वक्त है कि हम एक ऐसी शॉर्ट टर्म पॉलिसी लेके आए कि जो हमारे मुल्क में ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है, हमारे मुल्क में जो टेररिज्म हो रहा है उसका खात्मा कैसे किया जाए, उसके खात्मे के लिए मिल बैठ के एक सस्टेनेबल पॉलिसी लेके आ जाएं कि जो हमारे KPK के हालात हैं, जो बलोचिस्तान के हैं, और इस फ्लोर ऑफ द हाउस हम 12 हमारे मेंबरान ने इस आवाज को उठाया है कि वहां पे दहशतगर्दी हो रही है, कौन इन्वॉल्व है, कौन स्टेक होल्डर्स, उनकी जड़ें भारत से मिलेंगी, इंडिया से मिलेंगी, उसका खात्मा बहुत जरूरी है। इसके लिए पूरी दुनिया में लॉबिंग करनी चाहिए। जिस तरह हिंदुस्तान जो है स्लो एंड स्टेडी अपने स्टेक होल्डर्स हर जगह बिठाता है और लॉबिंग करता है, और एक पश्तो का में मुहावरा भी है कि रिश्तिया राजी नो दरोगो कलीवरान कड़ी हुई। जब तक सच्चाई आती है झूठ गांव को मिलियामेट कर जाता है। हिंदुस्तान का भी यही नारा है। दहशतगर्दी भी हिंदुस्तान कराता है, दहशतगर्दी हिंदुस्तान करता है और इल्जाम पाकिस्तान पे लगाता है। हम क्यों माजरत खाना रवैया रखें? यही वक्त है कि अभी इस ह्यूमन राइट की वायलेशन जो कश्मीर में हो रही है, जो मकबूजा कश्मीर में हो रही है, जो आजाद कश्मीर में हो रही है, उसका इल्जाम तो क्या वो मुजरिम है हिंदुस्तान, उसको मोरद इल्जाम ठहराए? अक़वाम मुत्तहिदा UN आज आपके प्लेटफॉर्म पे आपको सराह रहा है। सफारती लिहाज से आप अपने आप को और मजबूत करें, और यही वक्त है कि ये जंग शुरुआत तो हिंदुस्तान ने की, हम तो हमेशा दिफा के लिए आते हैं, दिफा करने के ख्वाहा हैं। तो यही वक्त है, मेरी भी ये सजेशन है कि इसको लेके आगे बढ़े और पूरी दुनिया में सिफारती लिहाज से अपने पाकिस्तान का जो एक टेररिज्म है, जो मोदी का एक नैरेटिव है, बयानिया है, वो फेल हो चुका है। वो पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहा है, वो खुद आइसोलेट हो चुका है। इसी वक्त की नज़ाकत को समझते हुए हमने मिल बैठ के इस दहशतगर्दी का खात्मा करना है
कि कौन कर रहा है, कि सफरर हम है और मोरद इल्जाम भी हमें ठहराया जा रहा है। और दूसरी जनाब स्पीकर, जिस तरह हमारे पाकिस्तान के शाहीनों ने फ्रंट लाइन पे हम जहद तैयार होके हमारी सरहद की हिफाजत की है, मैं भी खराज तहसीन पेश करती हूँ अपने अफवाज को, अपने हर उस सिपाही को जो कि पाकिस्तान का बच्चा है, जो कि हमारा बच्चा है। और मुझे फख्र है अपने बेटे पे भी कि मेरा बेटा भी स्क्वाड्रन लीडर हशाम आज फ्रंट लाइन पे पाकिस्तान की सरहद की हिफाजत कर रहा है। तो पूरे कौम के बच्चों के साथ मैं अपने बच्चों की भी हिफ्ज़ व अमान की दुआ की दरख्वास्त करती हूँ। शुक्रिया जी, थैंक यू। शुक्रिया। समीना गुरकी साहिबा। शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझती हूँ कि इस वक्त हम जिस के लिए बात कर रहे हैं, टॉपिक कहना तो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है, कि हम जिन जज्बात का इजहार कर रहे हैं और पूरी कौम पाकिस्तान की जो इस वक्त जिस कैफियत में है, उसके लिए हर जो भी पाकिस्तानी है, हमारा दिल चाहता है कि हम अपने ख्यालात का, अपने जज्बात का इजहार करें। और ये कोई इतना आसान नहीं है कि हम बिल्कुल लफ्ज़ी जो है उसको अपने अल्फाज को उस तरह मैं नहीं समझती कि हम एक्सप्रेस कर सकते हैं जो इस वक्त हमारी फीलिंग्स हैं। लेकिन मैं सबसे पहले इस पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से आप सब के लिए दुआगो भी हूँ और मुबारक भी दूंगी कि इस वक्त हम सब एक हैं, हमारी आवाज़ एक है। हमारे पूरे जो तमाम जमातें हैं, उन्होंने जो इस वक्त सब ने बातें की हैं और कंसेंसस के साथ कि पाकिस्तानी मुश्किल वक्त में इकट्ठे होते हैं। और बारहा हमारे जो हमसाया मुल्क है, हिंदुस्तान है, उसने बार बार पाकिस्तान को जो ललकारता भी है और आजमाता भी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग हमेशा कामयाबी से उसमें से सुरखरू होते हैं। मैं अपनी पाक अफवाज को दिल की गहराइयों से मानती भी हूँ और हमेशा ज़िंदगी का कोई भी हिस्सा हो, मैं उनके लिए दिली जज्बात ऐसे ही हैं कि मैं समझती हूँ कि उनके अफवाज के साथ जो हम पाक लफ्ज़ लगा देते हैं, उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रहती है। उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, वो हर जगह पे होते हैं, लेकिन ये है कि जो हमारे सोल्जर्स हैं, जिस मुश्किल से वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। मुझे इत्तफाक हुआ था एक दफ़ा LOC पे जाने का, तो मैंने देखा कि उनकी कितनी टफ लाइफ होती है, बहुत ही मुश्किल। तो मेरे लिए मैं समझती हूँ कि हमारे जो जितने हमारे सोल्जर्स हैं, जितने हमारे पाक फौज के हैं, हमारी बहन ने कहा कि इनका बेटा इस वक्त फ्रंट लाइन में है और स्क्वाड्रन लीडर है, तो वो चाहे ऑफिसर्स की पोजीशन में है या उस तरह है जिस तरह अपनी जानों को लेके सरहद पे खड़े हैं और हर वक्त, और जो उन्होंने जवाब दिया परसों, हिंदुस्तान वालों को समझ आ गई है कि पाकिस्तान में जो मुसलमान हैं वो हकीकी मानों में वो जज्बा रखते हैं जिसका कोई बदल है ही नहीं। मैं अभी जो थोड़ा सा जिक्र करूंगी, सभी ने पहलगाम पे भी बात की है और ये हमारी जो ट्रेन का हादसा है, बहुत तकलीफदेह हादसा था, उस पर बात की। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा आज की पोजीशन है, मैं उस पर ज़रूर बात करूंगी कि आज इस वक्त 8 शहरों में उन्होंने अपने ड्रोन जो है उनको भेजा है और हमारे जो है उसमें कुछ मिसाइल भी हैं लाहौर में बरकी रोड पे, और ये है कि जहाँ पे हमारी कुछ ऐसी तनसीबात हैं जहाँ पे है उन्होंने उसको निशाना किया और ये टारगेट करके उन्होंने 2 दिन पहले मस्जिदों में भी किया और हमारे मासूम शहरियों को जो शहादत मिली है। लेकिन हिंदुस्तान एक प्लान के साथ कर रहा है। मैं समझती हूँ कि हमें भी अपने लोगों को वो जो पैनिक इतना कर रहे हैं उसके लिए हमें कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहिए कि हमारे लोग, क्योंकि एक मैसेज होता है कि लाहौर में जैसे बरकी में 2 गिरे हैं, इसी तरह कराची में मलीर एरिया है, डिफरेंट जो जगहों पे सरगोदा है, सियालकोट है, बहुत सारी जगहों को उन्होंने टारगेट किया है। तो हमें भी उसके लिए जो मैं समझती हूँ कि ये ओपनली तो नहीं बता सकते, लेकिन जो भी उन्होंने इनका फैसला है कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया और हम उसके लिए भरपूर तरीके से तैयार भी हैं, पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से भी और अपने इलाकों के हवाले से। इस दुआ के साथ अपनी बात ख़त्म करती हूँ कि पाकिस्तान
कि जो अवाम है, हम मुसलमान हैं और हमारे साथ जो हमारी मिनॉरिटी में लोग हैं वो भी एज ए पाकिस्तानी हम सब एक हैं और एक कौम होके हम इंशाल्लाह बाहर निकलेंगे तो कोई भी हमें शिकस्त नहीं दे सकता। बहुत शुक्रिया जी। जी शुक्रिया। बुलेन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। जैसे कि गुज़िश्ता 2-3 दिनों से इस असम्बली फ्लोर पर एक ही एजेंडा पे बात हो रही है, यकीनन मैं समझता हूँ कि जिस तरह हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया और पाकिस्तान की क़यादत ने बहुत ही संजीदगी से इसका जवाब दे दिया और हर तरह के अफर की इन्वेस्टिगेशन का, मगर चूँकि उनके दिमाग में एक जंगी जुनून सवार है और उन्होंने बिलाखिर पाकिस्तान पर एयर अटैक किया, तो पाकिस्तान की तरफ से अपने दिफा में एक वाज़े और मजबूत पैगाम भी उस तरफ गया, जो यकीनन एक काबिल तारीफ़ अमल है। जनाब स्पीकर, जंग कोई अच्छी अमल नहीं है। जंग का कोई भी बाशऊर इंसान जंग की हिमायत नहीं कर सकता है, लेकिन हर किसी को सेल्फ डिफेंस का हक भी दिया गया है। जनाब स्पीकर, चूँकि इस मसले पे तमाम पार्टियों और ज़्यादातर लीडरशिप ने इस पे बात की है, मैं इस पे इसीलिए मुख्तसरन मैंने बात की और मैं चूँकि एक इलाके से मेरा नुमाइंदगी है और मेरे भी इलाका मैं समझता हूँ किसी जंग ज़दा इलाके से कम नहीं है और इस ऐवान में हुकूमती ज़िम्मेदारान भी बैठे हुए हैं और चूँकि मैंने 12 अपने इलाके के मसाइल पर रोशनी डाली है, लेकिन बदकिस्मती ये रहा है कि इस ऐवान में जिस तरह भी बात की जाए या जिस तरह के मामलात को पेश किया जाए, बातें और मामलात इस चार दीवारी से आगे उसको कोई एड्रेस नहीं करता है या कोई नहीं सुनता है। जनाब वाला, आज बलूचिस्तान बिल्कुल मैं कहता हूं कि अपनी तारीख का जो इंतहाई मजाले में वो बलूचिस्तान में दोहराए जा रहे हैं। हर तरह कत्ल गारत हो रहा है, हर तरह लूटमार है, मजदूरों से भी बदला लिया जाता है और सरकारी मुलाजिमीन से भी बदला लिया जाता है, मगर लेने वाला भी वही लोग हैं और मजलूम से, मजलूम की जेब से उसकी मजदूरी का पैसा निकालकर चेक पोस्टों पे भत्ते की सूरत में वसूल किया जाता है। जनाब वाला, हर वक्त यही रोया जाता है कि जी बलूचिस्तान में करप्शन है। मैं कहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ लाहौर या इस्लामाबाद की एक डिवीजन का बजट भी बलूचिस्तान के बजट से भी ज्यादा होगा, लेकिन बलूचिस्तान में वाकई करप्शन है, हम इसकी दिफा नहीं करते हैं। मगर करप्शन को कौन रोकेगा? करप्शन को रोकने के लिए इदारे बने हुए हैं, वो इदारे खुद करप्शन में इन्वॉल्व हो गए। आज सर गवादर, आप लोग गवादर करके ये हुकूमत और पिछली हुकूमतें तकते नहीं थे। आज गवादर से निकलते हुए तुर्बत तक पहुंचते हुए आपको 1.5 घंटे का सफर है। सर आप देखें, एक चेक पोस्ट पे, वो एक चेक पोस्ट है वहां पर तला के नाम पे, जो 4-4 घंटे लोगों को गर्मी में, सर्दी में कड़ा करके उनको जलील करता है और 4 घंटे बाद उनको छोड़ देता है, वो अपने घर जाते हैं। यही सूरत हाल क्वेटा में लखपात चेक पोस्ट की है और उत्तल में जाम साहब बैठे हुए हैं, उत्तल में भी यही सूरत हाल है।
आया हम इस मुल्क के शहरी नहीं हैं, हमें जिंदा रहने का क्यों नहीं दिया जाता है कि हम आज़ादाना तौर पर रोजगार करें और आज़ादाना तौर पर अपने इलाके एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। आज सुबह पंजगूर में बैंक डकैती हुई है, ताने से 1 किलोमीटर का फासला भी नहीं है, लेकिन वहां पे पुलिस सेटअप और जिले इंतजामिया, मैं कहता हूं कि वो बच्चों पे लगे हुए हैं और महीने का वो अरबों और करोड़ों रुपए कमा के अपने हुकाम बाला को देते हैं और अवाम जाने अवाम का काम। ये सूरत हाल सर रही। मैंने 12 वजीर आजम साहब के नोटिस में ये चीजें लाई हैं, मिनिस्टर साहबान बैठे हुए हैं, मैं उनके नोटिस में ये बातें लाना चाहता हूं कि खुदारा हम पर रहम करें। जो आप लोग मुजालिम की बात करते हैं, जरूर जहां पर भी जुल्म होता है वो काबिल मुजम्मत है। अब बलूचिस्तान पर भी तवज्जो दे सर, बलूचिस्तान को आप लोगों की तवज्जो की जरूरत है, बलूचिस्तान को इस ऐवान की तवज्जो की जरूरत है, बलूचिस्तान को इस हुकूमत की तवज्जो की जरूरत है और बलूचिस्तान के लोगों को रोजगार करने दिया जाए। आज ईरानी बॉर्डर को तुर्बत से 2 महीना हुए बंद किया गया है सर, वहां के लोग क्या करेंगे? आप देख लें, वहां पे सनत है, वहां पे जमींदारी है, वहां पे और कोई कारोबार है। एक ही कारोबार था जो लोग वहां पे मजदूरी करके और अपने बच्चों की पेट पालते थे और उसको 2 महीने से बंद किया गया। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ सर आपका शुक्रिया अदा करता हूं और एक दफा फिर जो मुजालिम हुए हैं, हमारे जो लोग शहीद किए गए थे, मैं उनको खराज अकीदत पेश करता हूं और हिंदुस्तान की इस जंगी अमल की मजम्मत करता हूं। थैंक यू सर। शुक्रिया जी। अनिका मेहदी साहबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज इधर ऐवान में अपने जज्बात का इजहार करने का मौका दिया है। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान का क़याम किसी हादसे की पैदावार नहीं थी, कायदे आज़म की वलवला अंगेज़ क़यादत का नतीजा है, सियासी कारकुनों की शानदार जिदोजहद का समर है। इसकी बुनियादों में हमारे बुजुर्गों, जवानों, माओं, बहनों, बच्चों का खून शामिल है। ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना है, ये अतिया खुदाबंदी है और ये इंशाल्लाह ता क़यामत तक कायम और दायम रहेगा। जनाब स्पीकर, मकार और बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी पे हमला करके पाकिस्तान पर अपनी बेशर्मी और इंतहाई घटियापन का मुजाहिरा किया है। माजी को बरकरार रखते हुए, माजी की रवायत को बरकरार रखते हुए दुश्मन ने शहरी आबादी पर हमला किया है और नहत्ते शहरियों को निशाना बनाया है। ये कौन सी मर्दानगी है, ये कौन सी ताकत का इस्तेमाल है जो आम शहरियों पर इन्होंने निकाला है। जनाब स्पीकर, हमारे जवानों ने जवाबी कार्रवाई करके उनके इस नापाक अज़ाइम को नाकाम बना दिया है। पाक फौज ने अपना फर्ज निभाया है। पाक वतन की हिफाजत हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारा हर सिपाही, हर जवान, हर बच्चा इस्लाम का सिपाही है। मैं मोदी को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि आज ये नया पाकिस्तान तुम्हारे सामने खड़ा है। ये 24 करोड़ अवाम का पाकिस्तान है, जिसके पास जज्बा जहाद है, जिसके पास जज्बा शहादत है। ये इमरान खान का दिया हुआ शऊर है इनके पास, इमरान खान का दिया हुआ नजरिया है इनके पास। हम पाकिस्तान की सलामती पर आंच भी नहीं आने देंगे क्योंकि हमारे पास जज्बा जहाद है। जनाब स्पीकर, कुरान मजीद में 484 दफ़ा जहाद का जिक्र आया है। हमें जंग से डर नहीं लगता। मेरे खुद के भाई ने इस मुल्क की सरहद की हिफाजत करते हुए जान दी है। मैंने खुद ने 2 साल उसकी शहादत की दुआ की है। हम माएँ बहनें, हम तो अपने जवानों की शहादत की खुद दुआ करती हैं। ये मोदी सरकार को कौन सी वजह आ गई थी कि वो उसने हमें कमज़ोर समझा है। जनाब स्पीकर, हम डरने वाली कौम नहीं है। मैं मोदी को एक पैगाम देना चाहती हूँ कि नज़र डाली अगर तूने मेरे अर्ज़े वतन पर, मेरा वादा है दुश्मन तेरी हस्ती मिटा देंगे।
जनाब स्पीकर, पाकिस्तान की जुग्राफियाई और नजरियाती सरहदों की हिफाजत के लिए हम एक हैं, हम यकजा हैं, क्योंकि हम पाकिस्तानी कौम हैं। जनाब स्पीकर, सिर्फ फौज किसी मुल्क की हिफाजत नहीं कर सकती जब तक इसकी आवाम इसके पीछे ना हो। हमें तारीख से सबक सीखना चाहिए। मशरकी बाजू का कट जाना हमें इबरत का दर्स देता है। पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि हम में इत्तेहाद हो, हम यकजहती का अमली मुजाहरा करें, मुल्क के तमाम इदारे अपनी हदूद में रहकर काम करें। 1947 से लेकर फॉर्म 47 तक होने वाली सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। मुल्क हालते जंग में है और कल हमारे भाई अहमद चट्टा के घर पे रेड हुआ है। ये कौन सी यकजहती है जनाब स्पीकर? शुक्रिया। सर मुझे बात कंप्लीट कर लेने दें। कानून और इंसाफ की हुक्मरानी हो तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा। मैं मोदी को पैगाम देना चाहती हूँ कि एक वो यजीद था जिसने नवासा रसूल का पानी बंद किया, और तारीख के आज तुम नए यजीद हो जिसने पाकिस्तान का पानी बंद करना चाहा है। हम हरगिज ये ऐसे नहीं होने देंगे। हमने ये न्यूक्लियर पावर क्या चिरागा करने के लिए बनाया है? जनाब स्पीकर, पाकिस्तान की सालमियत पर हम पाकिस्तानी अवाम कोई समझौता नहीं करेंगे। इसकी आर्जी खुशी को हम जल्द गम में बदलेंगे। जनाब स्पीकर, अच्छा होता कि इसके हमले का जवाब हमने दिया होता। हमने इसका जवाब ना देकर अफसोस है जनाब स्पीकर कि हमने इसका जवाब ना देकर बहुत बड़ी गलती की है। इसी वजह से आज लाहौर में ड्रोन अटैक गिरे हैं। मैं अपने डिफेंस मिनिस्टर से ये पूछना चाहूँगी कि आज जो ये ड्रोन गिरे हैं उनके बारे में हमें इन्फॉर्म करें और उनका स्टेटस चेक करके दें। ये कौन सी यकजहती है जनाब स्पीकर? हुकूमत और हमारी अफवाज का फर्ज है कि वो हमारे मुल्क की हिफाजत करें। शुक्रिया। वाइंड अप करें। थैंक यू सर। जी, निगहत शकील साहब। बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। यहाँ पे हम मुस्तकिल बात कर रहे हैं आज 4 दिन से पहलगाम में होने वाले दहशतगर्द वाक़े की, और उसके बाद जो हम पर इंडिया ने हमला कर दिया उसकी। तो पहलगाम वाक़े की तो हम सभी मजम्मत भी कर रहे हैं। दहशतगर्द जो हमला हुआ था और उसमें जो मासूम जाने गई थी उनका भी हमें अफसोस है और हम उसकी मजम्मत करते हैं। मैं ये बात भूल ना जाऊँ, हमारी मोहतरम मेंबर जो बात कर रही थी कि गिरे हैं ड्रोन गिरे हैं, ड्रोन गिराए गए हैं, और जो गिराए जाते हैं वो हमारी अफवाज की तरफ से ही गिराए जाते हैं। तो ये नहीं है कि हमारी फ़ौज आंखें बंद करके सो रही है, यकीनन वो इन चीज़ों को रिस्पॉन्ड भी कर रही है। सर, हमारे भारत की तरफ से मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मिज़ाइल जो हमले हुए थे उसमें हमारे निहत्ते और मासूम शहरी शहीद हुए हैं, और उनके हवाले से जो अभी ये बात की जा रही है कि हमने जंग का जवाब नहीं दिया, तो सर जंग भारत की तरफ से हुई है, और भारत ने जब हमला किया है तो उसके रद्दे अमल में हमने जो एक डिफेंस का हमारा स्टांस था वो लिया, और हमने कोशिश की कि हमारी तरफ से जिस तरह हमारे सिविलियंस शहीद किए गए उनके सिविलियंस शहीद ना किए जाएं और मारे ना जाएं। तो मेरी तमाम वो हमारे मासूम शहरी, निहत्ते शहरी जिनको बेगुनाह रात की तारीकी में मारा गया, शहीद किया गया, मैं उन ख़ानदानों से दिली ताज़ियत करती हूँ। और इसके अलावा सर, हमारी जो पाक फ़ौज है आज अगर हम पुरसुकून हैं तो अपनी इस पाक फ़ौज की वजह से हैं कि वो रातों को जाग कर हमारे मुल्क की हिफाजत करती हैं, अपने शहरियों की हिफाजत करती है। इसके इंडिया ने जो एक बुज़दिलाना कदम उठाया था उसकी सभी मजम्मत कर रहे हैं, और हमेशा से यही होता आया है सर कि जो ये इनके इंटेलिजेंस फेलियर हो जाता है और ये किसी वजह से जो इनके प्लान्स हैं वो नाकाम हो जाते हैं, तो ये इसका पूरा का पूरा मलबा पाकिस्तान के ऊपर डाल देते हैं और पाकिस्तान को मोरिद इल्ज़ाम ठहराते हैं, और एक तरफा तय करके कि बस ये पाकिस्तान ने किया है, पाकिस्तान के ऊपर हमला भी कर देते हैं और जो भी एक्शंस हैं वो कर देते हैं। अच्छा, इस मरतबा इनकी ये स्ट्रैटेजी बहुत बुरी तरह फ्लॉप हो गई है और फेल हो गई है, और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बाइज़्ज़त और सुरखरू हुआ है, और ये हर जगह पूरी दुनिया में ज़लील और रुस्वा हो रहे हैं।
इसके अलावा सर ये कि पाकिस्तान की एयरफोर्स एक बेहतरीन एयरफोर्स है और हम अपने शाहीनों को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने आज हमारे हमारा जो भारत हमारे ऊपर एक मुसल्लत हो रहा था उसकी कमर तोड़ दी है। अच्छा सर, हमारे शाहीनों ने जो राफेल गिराए हैं तो ये फ्रांस वाले भी बेचारे हैरान है कि ये हो क्या गया है। वो तो समझते थे कि ये अनबीटेबल है या नहीं मारे जा सकते, लेकिन जो ये राफेल गिरे हैं तो ये तो फ्रांस वालों की भी आंखें खुल गई हैं कि ये उन्होंने किस कौम को बेच दिए हैं कि जो उनकी इज्जत और उनका ख्याल भी न रख सकी। यहाँ पे सर हर तरह की जंग और जंग में मुकाबला करने के लिए हम पाकिस्तानी अवाम अपनी फ़ौज के शाना बशाना हैं, कदम ब कदम हैं और हम उनका साथ देंगे। सर यहाँ पे बार बार बात हो रही है इस चीज़ की कि हम एक कौम हैं, लेकिन जब भी हम बात करने के लिए खड़े होते हैं तो हम एक कौम नहीं लगते हैं। यहाँ से जो इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें हमारे ऊपर हैं, इस वक्त जो हमारी असेंबली में लोग बातें कर रहे हैं वो उन बातों को नोट किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि कितने डिवाइड हैं ये लोग। इसमें सर मेरी एक दरख्वास्त है कि यहाँ पे खड़े होके एक पाकिस्तानी होने की तरह बात करें। हम शख्सियत परस्ती की बहुत ज़्यादा बातें कर रहे होते हैं। सर शख्सियत परस्ती उस वक्त हम कर सकेंगे जब हमारा ये पाकिस्तान होगा, जब पाकिस्तान सलामत रहेगा। अल्लाह ताला इस पाकिस्तान को ता क़यामत सलामत रखे। हम लोग उस वक्त अपनी सियासत को रख लें, उस वक्त के लिए अपनी शख्सियत परस्ती को रख लें और इस वक्त सिर्फ एक होकर हम पाकिस्तान की बात करें। सर मैं बात करना चाहूँगी मीडिया के हवाले से। एक तो ट्विटर पे बैन हट गया है, एक्स पे, वो बहुत एक अच्छी बात है क्योंकि इस वक्त हम सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये वो स्ट्रॉन्ग मीडियाज़ हैं जो कि हमें सपोर्ट करेंगे और हमारे नैरेटिव को आगे लेके जाएंगे। तो सर मेरी एक और अच्छा, हमारा मीडिया अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम कंपेयर करें इंडिया के मीडिया से तो बड़ा रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करता है। वो बहुत रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग करता है, वो बहुत रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग करता है। सर इंडिया का मीडिया तो लगता है कि बस जंग के मैदान में या बिल्कुल बॉर्डर पे खड़ा हुआ है और वो जो गोलाबारी उनके लफ्ज़ी गोलाबारी हो रही होती है उससे हम भी महफूज नहीं रह सकते। मेरी बस हमेशा यही सर, मैं बहुत ज़्यादा नहीं टाइम लूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा बातें रिपीट हो रही हैं और मैं एक दफ़ा फिर दरख्वास्त करूँगी कि प्लीज़ आप सब एक पाकिस्तानी बन जाएं और एक पाकिस्तानी कौम बन जाएं। हमारे शाहीन, हमारे एयरफोर्स, हमारी अफवाज पाकिस्तान, उन सब का हौसला बढ़ाएं। इन पे क्वेश्चंस खड़े करके आप प्लीज़ उनकी हिम्मत को कम नहीं कीजिए क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। और मैं हमेशा से यही कहती आई हूँ और आज हम अपने सिपहसालार को भी सलाम पेश करते हैं जिनकी स्ट्रैटेजीज़ इतनी ज़बरदस्त है कि इंडिया को बैकफुट पे जाना पड़ रहा है और मुंह की खानी पड़ रही है। और बस मेरा यही कहना है कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। शुक्रिया। शाजिया मरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ऑनरेबल स्पीकर साहब। सर सबसे पहले तो डिप्टी स्पीकर साहब आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी जो शहीद हुए हैं इंडियन अग्रेशन के नतीजे में, अब तकरीबन 31 लोग हैं, उन तमाम की फैमिलीज़ के साथ इजहार ताज़ियत करना चाहूँगी। बहुत ही तकलीफ़ दे हमने तस्वीर देखी हैं मासूम बच्चों की, किसी की उम्र 3 बरस, किसी की उम्र 4 बरस, किसी की 5 बरस, किसी की 7 बरस, किसी की 12 बरस, ज़ईफ़ ख़वातीन, बुज़ुर्ग लोग, मर्द, औरतें, मासूम जानें इंडियन अग्रेशन के नतीजे में पाकिस्तान की सरजमीन पर उनका लहू बहा है। यकीनन बहुत ही तकलीफ दे उन तमाम की फैमिलीज़ के साथ मैं इस पूरे ऐवान की तरफ से ताज़ियत करना चाहूँगी। सर मैं अपनी पाक फ़ौज, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, उनकी जुर्रत को सलाम पेश करती हूँ। उनकी जो हिम्मत है, उनकी जो सलाहियत है, उनको हम सलाम पेश करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जिस तरीके से उन्होंने इंडियन अग्रेशन का जवाब दिया, उस अनप्रोवोक्ड अटैक का जवाब दिया,
जो पाकिस्तान पर नहीं होना चाहिए था। इसके साथ साथ डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा ख्याल है कि अब ये बात वाज़ेह हो गई है कि भारत इस खित्ते का बुली है। ये कहना हमें चाहिए कि वो एक बुली है। सर, बहुत कुछ यहाँ हमारे साथियों ने कहा है। 22 अप्रैल के बाद हम मुतवातर ये कहते रहे, यहाँ से आवाज़ें उठी हैं, ऐवान के अंदर से भी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी ये कहा है कि हमारे पास कोई सबूत अब तक नहीं आया। भारत ने 22 अप्रैल को within 10 minutes of the terrorist attack that took place in Indian occupied Jammu and Kashmir, India has been so far unable to provide any evidence. If they are blaming Pakistan, they cannot back it with any evidence so far. और हुआ ये कि उन्होंने जो मोदी सरकार का एक हिंदुत्व माइंडसेट है, उसके नतीजे में सबसे पहले तो इसे मजहब की तरफ ले गए और ये कहना शुरू कर दिया कि ये हिंदू मुसलमान का मसला है, जबकि ये हकीकत है कि एक तो हमने पहलगाम वाक़े की मजम्मत की, वज़ीर आज़म ने की, पाकिस्तान के सदर ने की, पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड्स ने की, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की। ना कि हमने मजम्मत की, बल्कि ये भी एक बात जो तासुर है वो गलत है कि ये कोई मजहबी मसला है। दहशतगर्द के लिए मजहब कुछ नहीं है, दहशतगर्द के लिए नस्ल और रंग कुछ नहीं है। दहशतगर्द दहशतगर्द है। अगर उसने दहशतगर्दी इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर में की तो वो भी दहशतगर्दी है, और अगर उसने पाकिस्तान में की तो वो भी दहशतगर्दी है। और ये बात मोदी सरकार क्यों नहीं बताती कि उस दहशतगर्दी में जहां हिंदू कत्ल किए गए, वहां एक मुसलमान भी शहीद किया गया। आदिल नामी शख्स जिसने उस दहशतगर्द को रोका कि वो निहत्ते टूरिस्ट को ना मारे, तो उस मुसलमान बच्चे को भी शहीद कर दिया गया। सो दिस इज नॉट अ वॉर बेस्ड ऑन रिलीजन। और ये रंग इसे मोदी सरकार दे रही है जो बहुत गलत और बहुत खतरनाक रंग है। और बार बार हम ये कह रहे हैं कि ऐसा वो ना करें, क्योंकि इसके नतीजे में इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर में 50 घरों पे हमला किया है इंडियन स्टेट ने, मुसलमानों के घरों पर। वहां से स्टूडेंट्स को उठाया जा रहा है, नौजवानों को उठाया जा रहा है बगैर किसी वजह के। आप उनकी आवाजें तो सुने। 7 लाख फौज इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर में आखिर कर क्या रही है? मैंने ये पहले भी किसी टेलीविजन पे कहा था कि क्या वो चने खाने के लिए बैठे वहां, या वो सिर्फ और सिर्फ निहत्ते वहां के जम्मू और कश्मीर के जो रहवासी हैं उन पर जुल्म ढाने के लिए बैठे। और ठीक कहा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कि मोदी का ये जो इस वक्त जंगी जुनून है और पाकिस्तान की तरफ जो तोपों का रुख वो कर रहा है, वो अपने तमाम घिनौने ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो इंडियन जम्मू और कश्मीर वो पे दर पे कर रहा है, उससे नजरें हटाना चाहता है, दुनिया की और अपने लोगों की भी। क्योंकि अपने लोग उससे सवाल कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सिक्योरिटी लैप्स है। When you have presence of Indian Army, 700,000 is not a small number of armed forces, armed personnel in Indian occupied Jammu and Kashmir. तो वो कहां थे उस दिन? उनके अपने लोग सवाल कर रहे हैं। फॉर्मर गवर्नर ऑफ इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, जिनका गालिबन नाम है सत्यपाल मलिक, उसने कहा है कि ये तो बड़ा सिक्योर्ड इलाका है, यहां तो फौज होनी चाहिए थी, पुलिस होनी चाहिए थी, एक एहलकार नहीं था। तो ये मोदी सरकार से उन्होंने सवाल किया। और उन्होंने खुद कहा है, इंडियन एंकर पर्सन है करण थापर, उसके इंटरव्यू में उस शख्स ने कहा है कि शर्म आनी चाहिए मोदी को और माफी मांगनी चाहिए मोदी को फॉर दिस सिक्योरिटी लैप्स। सो ये आवाजें भारत के अंदर से उठ रही हैं। उन आवाजों को दबाने के लिए, उन सवालात को दबाने के लिए, अपनी ह्यूमन राइट्स वायलेशन से डाइवर्जन के लिए उस शख्स ने पाकिस्तान पर बगैर किसी सबूत, बगैर किसी एविडेंस के इल्जाम लगाया, जिसकी हमने पहले भी मजम्मत की, हम आज भी मजम्मत करते हैं। सर, कल यहाँ वजीर आजम साहब ने जिस फ्यूनरल का जिक्र किया वो एक मासूम बच्चे का फ्यूनरल था, इर्तजा नामी।
मासूम, प्यारी जान, प्यारा खूबसूरत बच्चा जिसकी आप आज भी आप शक्ल देखें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कल उसके जनाजे में कमांडर इन चीफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान खुद गए, वजीर आजम साहब गए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए। उन्होंने गले से लगाया उस मासूम के भाई को। उसकी आंखें बता रही थी पाकिस्तानियों का इस वक्त क्या दर्द है, उसकी आंखें बता रही थी। और ये भी हम कह दें, हमने पहले भी कहा है कि हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। सर, जो हिंदुस्तान ने किया, इट वॉज एन एक्ट ऑफ डिलिबरेट प्रोवोकेशन। India launched an unprovoked attack across the line of control, a blatant violation of international law, a reckless escalation, and an affront to regional peace. और ये President of Pakistan ने भी वाज़े किया है। So let me say this: Pakistan will not be intimidated. Our resolve is unshakable, and our response has been, as it always will be, befitting and firm. जनाबे डेप्यूटी स्पीकर, कुछ अरसा कबल, बल्कि मेरे ख्याल पिछले महीने की बात है, अप्रैल की, कि 5 दहाइयों के बाद एक बड़ा कामयाब डिप्लोमेटिक यहां इवेंट हुआ, जब 6 से 7 हजार सिख यात्री पाकिस्तान आए। खुशियां बटोरी उन्होंने, बेहतरीन उनका वेलकम हुआ। यहां इतना, मैं कहती हूं, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डिप्लोमेटिक initiative on part of Pakistan was experienced by the 6 to 7,000 Sikh yatris. लेकिन ये रास नहीं आया मोदी सरकार को। और मैं ये भी बता दूं सर कि जिनकी ये गलत फहमी थी, जिन्होंने मोदी को उसके इलेक्शन से कबल गुड लक विशेस और बेस्ट विशेस भेजी थी, और फिर उसकी कामयाबी के बाद मई 2019 में बाकायदा मैसेजेस किए थे कि बड़े हम खुश हैं कि मोदी जीत गया और मोदी जो है इस खित्ते में अमन के लिए हमारे साथ काम करेगा। आज उनकी भी आंखें खुल गई होंगी कि मोदी हमेशा से एक कसाई था, और उसने जिस तरह बिलावल साहब has been very clear from day one. That's why he's called him Butcher of Gujarat, and that's why he later called him Butcher of Jammu and Kashmir. He was very clear. तो अब मेरा ख्याल है उनको भी ये समझ आ गई होगी कि मोदी जो बीजेपी के मंशूर में कश्मीर का पर कब्जा करना उसका एक एजेंडा आइटम था, वो उस पे ही अमल पैरा रहा। इलेक्शन से पहले भी उसका मैनिफेस्टो वही था। सो वी शुड हैव नॉट मिस्टेकन दिस मैन्स रोल, बट वी डिड, सम ऑफ अस। इट वाज अनफॉर्चुनेट, बट आई होप दैट दिस इज क्लियर टू देम that Modi was never a friend of Pakistan. He is not even a friend of the people living in his own country. Every day he's trampling upon the human rights of minority communities within India. He's torturing the Muslims of India. He's torturing the Christians of India. He's torturing the Dalits of India. How do you say that he's going to be a friend to Pakistan? Ever. It was written clearly on the walls. If you couldn't read it in 2019, thank God that you're able to see this now. His agenda is just to promote war. This is what he thrives on. Because भारत के मसाइल तो उसने हल नहीं किए, भारत की गुर्बत तो उसने कम नहीं की, भारत की बेरोजगारी तो उसने कम नहीं की। और चूंकि उसकी आवाम उससे पूछती है तो वो कहता है पाकिस्तान हमारे मसाइल का जो है वो हल है, पाकिस्तान पे हमला हमारे मसाइल का हल है। आपने ये नहीं बताया कि पाकिस्तान क्यों जिम्मेवार है 22 अप्रैल को जो आपके पास टेररिस्ट अटैक हुआ, लेकिन आपने उसके नतीजे में, अपने एग्रेशन के नतीजे में हमारे 31 लोग मार दिए, मासूम। और ये तो हमें पता है किसने मारे हैं ना, उसका तो कोई सबूत नहीं है कि अभी तक। हम तो कहते हैं दहशतगर्द ने वहां हमला किया है, पकड़ो, लटकाओ उस दहशतगर्द को। और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बहुत ही, मैं कहती हूं एक उम्दा सजेशन थी ये कि भाई इफ यू डोंट बिलीव पाकिस्तान, जो बार बार कह रहा है कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, कोई हाथ नहीं है, बिलावल भुट्टो साहब ने क्लियरली कैटेगोरिकली कहा है ये, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। आप अगर सबूत लाते हैं तो बैठ के हम आपके साथ बात करेंगे, बट यू डोंट वांट टू टॉक टू अस बिकॉज यू वांट टू अटैक अस एंड आवर इनोसेंट पीपल। तो आप एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करा ले,
इसको उन्होंने कल भी रिपीट किया, इसको बिलावल साहब ने भी फुल्ली इंडोर्स किया कि आप न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करा ले। आप न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन से भाग रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको पता है दिस इज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इन पहलगाम। You know you are involved in it. Your own people are blaming you for it. Not only Pakistanis, your own people. Modi, your own people are blaming you for this false flag operation. And there is a track record of BJP government. It is not today that they've done it. Whenever they've come in government, they do these false flag operations and they blame Pakistan to divert the attention of their population towards war. और सब भूल जाओ भाई, वॉर हो रही है पाकिस्तान के साथ, हम लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे। जंग लड़ने में कोई बहादुरी नहीं होती, ये सबसे बड़ी बुजदिली है अग्रेशन करना। ये बुजदिल करते हैं अग्रेशन, ये बुली करते हैं अग्रेशन। And India is a bully in this region. There's no doubt about it anymore. So we want dialogue. 2 minutes. We want dialogue, not deceit. We want stability, not suspicion. But there can be no meaningful peace when our goodwill is met with aggression and our restraint is mistaken for weakness. The people of Pakistan stand united. Our soldiers stand ready. And our message is simple. If you come for us, we will respond, and we will respond with resolve, inshallah. Sir, I would also like to quote what our chairman said. Chairman Bilawal said, and I quote him, "Let no one mistake our restraint for weakness. The Pakistan Armed Forces are vigilant, resolute, and prepared. Our skies are guarded, our borders are sealed by valor. Our nation stands united from Karachi to Khyber and from Lahore to Larkana. The sword we yield is only drawn when peace is threatened. When peace is threatened. So we are a peaceful nation. But when drawn, it does not miss. And it did not miss the 5 jets. जिसमें से 3 राफेल थे. वो तो वो आर्टिस्ट, फ्रेंच आर्टिस्ट जिसके नाम पे रखे गए थे, उसके साथ भी बड़ी नाइंसाफी है। भाई कोई अच्छा जहाज तो बना लेते। अच्छा जहाज तो बना लिया और हिंदुस्तान ने खरीद भी लिया, अपना ख्वाब पूरा कर लिया, तो अपने बंदे तो ट्रेन कर लेते। आपके पास ना जज्बा है वो जहाज चलाने का, ना ट्रेनिंग है जहाज चलाने की। शुक्रिया। एंड एक साथ 2 मिनट्स, ये साबित हो गया है कि आपके पास, हम कहते हैं ना, टप्पड़ी नहीं है आपके पास कुछ करने का। तो इतनी भड़कियां ना मारे। पाकिस्तान के जो अमन का एक हमारा मैसेज है, उसको हमारी कमजोरी ना समझे। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर आपने बुजदिली का मुजाहरा किया, आपने इनसिक्योरिटी, और 2015 से मोदी ये हमेशा कहता आया है, उसके दिमाग में ये इंडस वाटर ट्रीटी आज की नहीं है। आप उठा के बयानात देख लें, 2019 में तो वो इलेक्शन की मुबारकियां ले रहा था कुछ लोगों से यहाँ से, लेकिन 2015 से वो हमारी इंडस वाटर ट्रीटी को अटैक कर रहा है वो शख्स। So sir, that is again a criminal act. I will just take 1 more minute, sir. I would also want to condemn India's aggression, India's attack on our dam. ये एक humanitarian मसला है, ये हमारी ये human rights की जो भी laws है उसके against है, sir. 2 minutes, sir. When you say this, I lose the chain of thoughts. मुझे थोड़ा सा 2 मिनट दे दें, sir. This is an important issue. I am not asking for anything else, but this is an important issue. Sir, मैं ये जरूर कहूंगी कि इंडिया की अग्रेशन नहीं है, लेकिन उनकी जो ऑडेसिटी है वो बढ़ रही है। We must remember कि this is not the first time that India has used such fabrications to justify military adventurism. From Pulwama to Balakot, Pakistan has been a victim of propaganda-driven hostilities, all for domestic political consumption across the border. Sir, in the end, मैं सिर्फ एक शेर पढ़ रही हूँ, in the end. जी, शेर और पढ़ें, ये शेर पढ़ें। बरे सगीर के एक बहुत ही मशहूर शायर का है। बरे सगीर के शोरा हमारे भी शोरा है, और ये शेर मैं पढ़ूंगी कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, गर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। बहुत शुक्रिया सर।
जी सिबकतल्ला साहब, इसके बाद फिर मेजर ताहिर इकबाल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। डिप्टी स्पीकर साहब, सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान की तरफ से रात की तारीकी में जो जारहियत की गई है, हम उसकी न सिर्फ मजम्मत करते हैं बल्कि हम मुजाहिमत करते हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। डिप्टी स्पीकर साहब, मासूम शहरियों का, मासूम बच्चों की शहादत इंतहाई काबिल अफसोस है और हमें दुख है, और पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम वो इंतजार में है और इंशाअल्लाह हमें यकीन है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी पर जो वार किया है, हमारे मासूम बच्चों की और लोगों की शहादतें हुई है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड। पाकिस्तान इसका इंशाल्लाह भरपूर जवाब देगा। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हिंदुस्तान ने पुलवामा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में जो हरकत की है, वो इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल नॉर्म्स की खिलाफ वर्जी की गई है। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हम दहशतगर्दी के खिलाफ है, हम इस खित्ते में अमन चाहते हैं। पुलवामा में जो मासूम लोगों की कत्ल हुई है, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। हम दहशतगर्दी के हर शक्ल और जिधर भी हो, जहां भी हो, हम इसके खिलाफ है और हम इसको कंडेम करते हैं। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान मैं जिस इलाके से ताल्लुक रखता हूं, बदकिस्मती से हम 40-45 साल से हालात जंग में है। इस फैसले सुवार में हमारे 80,000 मासूम लोग शहीद हो गए और हम समझते हैं कि इस दहशतगर्दी के पीछे भी भारत का हाथ है। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं जिस इलाके से ताल्लुक रखता हूं उसको धीर कहते हैं। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आज़ादी के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियां दी है। कश्मीर में दिरकोट का जो मुकाम है, ये दीर की वजह से मशहूर हुआ है और उसकी वजह यह है कि ये हमारे कबाइल ने, हमारे आबाओ अजदाद ने इसको हिंदुस्तान से आज़ाद किया था। जनाब स्पीकर, हम आज भी अपने मुल्क की आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए खड़े हैं, लेकिन जनाब स्पीकर, ये मौका जो आया हुआ है,
अक़वाम की, नेशंस की तारीख में ऐसे कम मौके पैदा हो जाते हैं कि पूरी कौम इकट्ठी हो जाती है। इधर से भी तकरीरें हो रही है और इस साइड से भी तकारीर हो रही है, लेकिन जनाब स्पीकर, नेशनल कोहेजन के लिए, नेशनल यूनिटी के लिए, कौमी यकजहती के लिए हमें प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने चाहिए। जनाब स्पीकर, इस वक्त नो डाउट पूरे 24 करोड़ अवाम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन ये जुबानी यकजहती नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिकल स्टेप्स हमें लेने चाहिए। इस मौका पर मैं मुतालिबा करता हूं जनाब डिप्टी स्पीकर साहब कि पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर, पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम के लीडर और इस मुल्क की यकजहती की अलामत जनाब इमरान खान साहब को रिलीज किया जाए, शाह महमूद कुरैशी साहब को रिहा किया जाए, पॉलिटिकल वर्कर्स को रिहा किया जाए। और जनाब स्पीकर, हमारे तहफुजात हो सकते हैं, हमारे रिजर्वेशंस हो सकते हैं, खैबर पुख्तनख्वा के पुख्तूनों के तहफुजात हो सकते हैं, बलूचिस्तान के बलोचों के तहफुजात हो सकते हैं, लेकिन जनाब स्पीकर वो पाकिस्तानी है, वो गद्दार नहीं है। इस मौके को गनीमत जानकर जनाब डिप्टी स्पीकर साहब हम मुतालिबा करते हैं कि जनाब अली वजीर को रिहा किया जाए, मिसिंग पर्सन्स का मामला हो, मारंग बलोच को आजाद किया जाए। जनाब स्पीकर, इससे एक पैगाम जाएगा हमारे दुश्मन को, हिंदुस्तान को, कि पाकिस्तान की कौम एक है और इंशाअल्लाह एक रहेगी। मैं कंक्लूड करना चाहता हूं जनाब स्पीकर, मेरा बिलीफ है, हमारा अकीदा है कि इंसान आजाद पैदा हुआ है और सबसे कीमती चीज जो है वो इंसान की खुद मुख्तारी, इंसान की आजादी और इंसान की डिग्निटी है। जनाब स्पीकर, हम 24 करोड़ पाकिस्तानी, जो भी ख्वाह वो फॉरेन एग्रेसर हो, कोई बैरूनी जारे हो या कोई दहशतगर्द हो या कोई और हो, जो इस 24 करोड़ आवाम की आज़ादी परवार करेगा, उसकी खुद मुख्तारी परवार करेगा, उसकी आज़ादी को छीनने की कोशिश करेगा, तो पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम इसके खिलाफ इंशाअल्लाह उठ खड़े होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। शुक्रिया। मेजर ताहिर इकबाल साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अलैहि वसल्लम तस्लीमा। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं बड़ा मशकूर हूँ कि आपने आज वक्त दिया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं 71 वॉर का वेटरन हूँ और अल्लाह के फजल से मैंने जंग लड़ी और भरपूर जंग लड़ी है और जंग का बहुत सारा तजर्बा हमने समेटा, जिसमें अटैक का मामला भी था, जिसमें दफा का मामला भी था, जब हमें विड्रॉ करना पड़ा वो मामला भी था। सो एक्सपीरियंस बहुत है जंग का और अल्लाह का शुक्र है कि सर कतर में भी जिस दिन पहले दिन हमने हमला किया फतेहपुर पोस्ट पे इंडिया के, मैं उस वक्त 19 साल का एक नौजवान लड़का था, तो उस दिन भी उस पोस्ट पे इंडियंस के तकरीबन 78 लोग राशन पे थे, लेकिन जब हमला हुआ तो वो पोस्टें छोड़ के भाग गए। और मैं उस यूनिट से तल्लक रखता हूँ, 17 पंजाब हैदरी, जो राजा अजीज भट्टी की यूनिट है, जिसने 65 में पाकिस्तान का दिफा किया लाहौर में, और हमने पहले दिन इंडिया की 7 पोस्टें कैप्चर की। ये जो कादर पोस्ट थी, ये दरिया के पार थी जिस पे मैं गया। और एक पते की बात बता दूं कि एक मुसलमान का ये ईमान कि भाई वक्त और जगह मेरे रब ने मौत की मुकर्रर कर दी है, जिस दिन ये दिल में हमारे ठहर गया और ठहरा हुआ है इंशाल्लाह, तो आपको ये चलती गोलियों और गोलों से कोई डर नहीं लगेगा। और उन 17 दिनों में मैं यही समझे जैसे आप कुर्सी पे बैठे हैं, मैं इस तरह ही बैठा रहा हूं रात दिन, और अल्लाह का फजल है कि मुझे किसी एक जरा बार चोट भी नहीं आई। सो पाकिस्तान का नौजवान, पाकिस्तान का सिपाही इस वक्त मेंटली तैयार है। मैं पिछले दिनों एक नौजवान
जो इधर टेररिस्ट के खिलाफ लड़ रहा था, मैं गया, उसकी टांग कट गई तो मैं उससे मिलने गया तो अंदाजा हुआ कि वो कह रहा था कि मैं अपने साथी को जो शहीद हो गया था उसको उठाने की कोशिश कर रहा था तो मुझे भी गोली लगी और मेरी टांग कट गई। और मुझे अब भी आप मौका देंगे तो मैं जाके अपने दुश्मन के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। तो जज्बा ये है। सबसे पहले बात यह है कि सर, मोदी जो कसाई के नाम से मशहूर है, जो दुनिया में तबाह बर्बादी के लिए करता है, जो सिर्फ अपना इलेक्शन जीतने के लिए, चाहे वो पुलवामा हो चाहे बेलगाम हो, वो अपने बंदों को भी मरवा देता है, अपने शहरियों को मरवाता है सिर्फ इसलिए कि वो कहीं बिहार में या किसी जगह अपना इलेक्शन जीत सके। वो बात करता है कि जी इन्होंने मुसलमानों को मारा, ये आप अंदाजा लगा लें कि मोदी जैसा सर झूठ बोलता है कि हमने मुसलमानों की हिफाजत की। आज हिंदुस्तान के मुसलमानों की आप बात सुने या उनके हालात देखें तो आपको अंदाजा होगा कि किस कदर वो मुसलमानों के खिलाफ चल रहे। सिर्फ मुसलमानों के नहीं, चाहे वो सिख कम्युनिटी है, चाहे ईसाई है, चाहे लिलत है, चाहे और कौमें हैं, वो हर एक को मार के हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदुओं को जिंदा रखना चाहिए। हिंदुत्व का जो नारा उन्होंने लगाया है उससे तमाम कौमों की तबाह बर्बादी है। और जनाब स्पीकर, वो आज भी जैसे इन्होंने टेंपल, गोल्डन टेंपल में हमले किए, हजारों सिखों को कुर्बान कर दिया, आज भी वो सिख सारे सीसा उपलाई दीवार के साथ खड़े हैं और कहते हैं कि अगर पाकिस्तान पे हमला किया तो हम आपका रास्ता रोकेंगे। मैं अगले दिन स्पीचेस सुन रहा था उनके पार्लियामेंट्स की, सब इसके खिलाफ बोल रहे थे, हर बंदा, और इसका मुंह देखने वाला था कि जो लोग इसके खिलाफ बात कर रहे हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। जनाब वाला, इन्होंने हमला किया, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन आप ये तो देखें कि हमारी आर्मी ने, हमारी एयरफोर्स ने कितनी जल्दी रिएक्ट किया। और पहले दिन ही जब इन्होंने हमला किया तो पाकिस्तान एयरफोर्स के नौजवानों ने इनके 5 जहाज गिरा दिए और वो 3 रफेल, जिसका ये चर्चा पिछले 5-7 साल से करे, हमारा रफेल आ गया, हम नहीं छोड़ेंगे इनको, तो हमने उनको भी तबाह किया। आज फ्रांस की हुकूमत कह रही है हमारे रफेल वापस करो, क्योंकि तुम इस काबिल नहीं हो, तुम्हारे पायलट इस काबिल नहीं है कि वो रफेल को उड़ा सके। तो ये बहुत बड़ा धचका है इंडिया के लिए कि उनके अपने पायलट इतने कमजोर हैं कि वो रफेल को इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे। लिहाजा आज हम ये चाहेंगे कि पाकिस्तान, अभी मेरे दोस्त ने कहा कि हमें जल्दी हमला करना चाहिए, नहीं, पाकिस्तान सब्र से काम ले रहा है। हम हमला करने के चक्कर में नहीं थे, लेकिन यह गारंटी से कहा गया है हमें कि पाकिस्तान अपना बदला जरूर लेगा और हम लेंगे। हमें किसी चीज से डर नहीं है। मोदी, ये याद रखना, हमारे पास भी मिसाइल बहुत हैं और अल्लाह का फजल से प्रॉब्ली वी आर द नंबर 2 कंट्री इन द वर्ल्ड जिसके मिसाइल की एक्यूरेसी दुनिया मानती है। और एक मिसाइल एक वक्त में 5 वार हेड भी लेके जा सकता है। सो हमें मजबूर ना करो कि हमें ये मिसाइल ऑपरेट करने पड़े। आपने हमारे हमला किया और आज भी मेरे चकवाल शहर में भी हमला हुआ है, एक ड्रोन गिरा है वहां पे, वो फटा नहीं है तो एयरफोर्स वाले उठा के ले गए हैं। और ये लाहौर गुजरांवाला में जहां वो ड्रोन फेंक रहे हैं, आने वाले वक्तों में हमारे ड्रोन जब निकलेंगे, जब हमारे वो, फिर मैं गलती से ये भी कह सकता हूं कि जब हमारे टैक्टिकल बम निकलेंगे तो मोदी तुम्हें रास्ता नहीं मिलेगा। तुमने पहले पुलवामा में किया, फिर बेलगाम में किया, फिर तुमने जाफर एक्सप्रेस पे हमारा किया, हमारे साथ आप जाते करें और दुनिया में बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दुनिया को आपका चेहरा अब सामने आ गया है। मोदी तुम्हारा, चाहे कनाडा है, चाहे यूएसए है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे इंग्लैंड है, हर जगह पे तुम्हारी दहशतगर्दी के निशान मौजूद हैं। और वो गवर्नमेंट, खास तौर पे कनाडा ने आपके साथ जो हशर किया है इंटरनेशनली, वो आपको पता होना चाहिए। आप मशहूर हैं दहशतगर्दी के लिए और आप दहशतगर्दी करना पसंद करते हैं। लेकिन मोदी, ये याद रखना कि हिंदुस्तान का जब टूटना होगा और होना है इंशाल्लाह, तो मोदी तुम इसके जिम्मेदार हो।
तुम्हारी पॉलिसीज, तुम्हारा तरीका, तुम्हारा जब आप अपने माइनॉरिटीज को दबाएंगे, सब कुछ करेंगे, तो ये मुल्क कायम नहीं रह सकेगा, भारत कायम नहीं रह सकेगा। और इसके टूटने के जिम्मेदार मोदी तुम हो, जो हर वक्त कत्लो गारत की बात करते हो और कत्लो गारत से अपना निजाम चलाना चाहते हो, चाहे मुल्क के अंदर हो चाहे मुल्क के बाहर। इसीलिए इस वक्त आर्म फोर्सेस को मैं सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने वक्त बर वक्त एयरफोर्स ने अपना अमल किया और उनके जहाजों को गिराया। सर, ये ऐसे पायलट हैं, जब हमें F-16 मिला तो ये अमेरिका गए और ट्रायल के तौर पे इन्होंने वो F-16 उड़ाए, तो अमेरिकन अपनी उंगलियां दांतों के नीचे दबा के बैठ गए कि ये क्या चीज है कि F-16 पहली दफा उड़ा रहे हैं और इतनी एक्यूरेसी, और वो 32 Gs की पुल थी सर उस शख्स पर जो उसको उड़ा रहा था। तो वो हैरान हो गए कि 16 G से ऊपर तो हम जाते नहीं है, तो ये 32 G पे भी जहाज को उड़ा रहे हैं। सो हमारी कैपेबिलिटी वो है, हमारे जहाज हुए। J-17 ने दुनिया में अपना नाम पैदा कर दिया और दुनिया, और कितनी एक्सरसाइज हुई हैं, जब भी गए तो हमारा J-17 जीत के आए। और इंटरनेशनली आर्मी के जो मुकाबले होते उसमें भी हमारी फौज जब भी गई है तो गोल्ड मेडल लेके आई है एक्सरसाइज में कर। तो इसलिए जनाब स्पीकर, ये बात वाजा कर देनी चाहिए, हमारी कौम यकजा है। मैं इन सब से कहूंगा कि मिल के चलो और अपने रब से रजू करो। रब काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का है। आपने कायदे आजम को इंग्लैंड में मुलाकात की, ख्वाब में आए और उनको कहा कि जाओ वापस और जाके पाकिस्तान का मामला हल करो। आप खान कलात को ख्वाब में आके ये हुक्म दिया कि तुमने पाकिस्तान की सरना, ये मुल्क बन के रहेगा और तुमने तो ये ऐसा बड़ा मौजज़ा है कि अल्लाह पाक ने ये हमें अता किया है और अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत फरमाएंगे। दुनिया में जहां भी देखें शायद हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब्बे काबा, हम तेरे हबीब के उम्मती हैं, खुदा का वास्ता हमसे रहम का मौला फरमा। आप चले जाएं, उधर फिलिस्तीन में चले जाएं, कश्मीर में चले जाएं, जहां भी जाएंगे मुसलमानों के साथ वो ऐसे रो रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो तू हमें माफ कर दे, हम तेरे आगे सर झुकाते हैं, माफी मांगते हैं। नहीं, इसमें दो राय नहीं है मौला कि हम बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन तेरी रहमत बहुत वसी है, तू रहमत का एक जर्रा भी भेजेगा हमारी तरफ तो इंशाल्लाह हमारी कामयाबी होगी। और दुआ करते हैं रब्बे काबा कि इस मुल्क की हिफाजत फरा और हमें दुश्मनों पर जो है वो फकीर अता फरमा और हमें उनको सरनगू करने की ताकत अता फरमा। मैं दुआ गो हूँ आर्म फोर्सेस के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, कि अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए और हमें आपस में जोड़ के रखे और इस दुश्मन का मुकाबला करने की तौफीक दे। वमा इल्ला बिल्लाह। शुक्रिया जी। हाउस के इंफॉर्मेशन के लिए कि बहुत सारे नाम हैं, तो हम अभी 20 मिनट की ब्रेक ले रहे हैं। इसके बाद नबील गबोल साहब और दूसरे जो नाम हैं अंजुम अकील साहब और दूसरे ऑनरेबल मेंबर्स की भी टर्न आएगी। ब्रेक फॉर 20 मिनट्स, नमाज।